Now, in the history, we are going to discuss the 12th chapter of National Movement Fulfillment. In the last chapter, we have discussed how the platform or ground for the movement or freedom struggle was uh, created, and how the different segments of Congress, either moderate phase or extremist, or whether the Muslim League, all collectively started their freedom struggle. And in this chapter, we'll discuss how Gandhiji entered the Indian politics, and what was the effect of Gandhian policy, Gandhian ideas in the freedom movement, and how we get the total freedom. So, in this chapter, we start emergence of Gandhiji. Mohandas Karamchand Gandhi was born at Porbandar, Gujarat on 2nd October 1869 while practicing as a lawyer in Durban, South Africa. He successfully led Indians from various communities in campaigns against racial discrimination. गांधी जी ने यहाँ गुजरात में जन्म हुआ इनका, और उसके बाद ये एज ए लॉयर साउथ अफ्रीका गए, डरबन में, और यहाँ पर इन्होंने अच्छी प्रैक्टिस के साथ साथ वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय संघर्ष हो रहे थे उसमें भेदभाव में इन्होंने अपना कैंपेन किया और वो सक्सेसफुल रहा. गांधी जी's method was called सत्याग्रह, a compound of the words सत्य एंड आग्रह. मतलब जो ट्रूथ है उसी को एक्सप्रेस करना, ये इनका सबसे बड़ा विपन था. बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस कॉपरेशन, और इनका ये जो सत्याग्रह था ये पूरी तरह से अहिंसा पर बेस्ड था. गांधी जी's philosophy was in resist evil without hating the evil doer. यहाँ पर इनका मानना था कि बुराई से नफरत करना है, उस व्यक्ति से नहीं जो मतलब एविल कर रहा है या गलत कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति से नहीं. व्यक्ति बुरा नहीं होता, वो एविल या बुराई ही, हमें उससे दूर रहना है. Gandhi ji returned to India in 1915, and in 1960 he established the Sabarmati Ashram at Ahmedabad. Here he spun yarn on the charkha and wove khadi to promote self-reliance. इन्होंने 15 में आए यहाँ पर साउथ अफ्रीका से इंडिया, और 16 से ही साबरमती आश्रम में इन्होंने स्वदेशी या सेल्फ रिलायंस की तरफ लोगों को प्रमोट किया और चरखा और खादी का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया. गांधी जी ऑर्गेनाइज सक्सेसफुल सत्याग्रह campaign for the cause of indigo cultivators of the Champaran. It is a very remarkable campaign, and it was the first campaign in India by Gandhiji, that was Champaran Satyagraha. It was the cause of indigo cultivators. ये इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए था, और इसके बाद अहमदाबाद में खेड़ा सत्याग्रह किया गया. Then these campaigns earned him the respect of his countrymen. Among the young nationalists who joined him during these campaigns were Rajendra Prasad, Vallabhbhai Patel. Gandhiji combined political agitation with a continuous campaign against social evils. इन्होंने दो तरीके से साथ, पहली बात तो हमारे जो पॉलिटिकल एजिटेशन जो हमारे खिलाफ था, अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो भी जारी रखा. साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक बुराइयां जो हमारे सोसाइटी में थी उसको भी दूर करने के लिए इन्होंने साथ ही साथ अपने कैंपेन किए. वेदर इट इज़ फॉर अनटचेबिलिटी और एल्कोहलिज्म और फॉर इल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन. Okay, as a result of Gandhiji's success, the common people began to see him as the savior who had been sent to rid them of oppression and misery that had spread across the country.
अब लोग उनको अपने एक मसीहा के रूप में देखने लगे। लोगों को लगा कि अब इनके लीडरशिप में हमें सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, हम लोग आज़ादी पा सकते हैं। Some compared him to Ram, who, according to the Ramayana, had destroyed the evil Ravan. उन्होंने उनको राम से के बराबर, भगवान राम के बराबर भी एक कंपेयर करने लगे। And some regarded him as the साधु, they were ready to do anything for him. और लोगों के अंदर एक ऐसा बिलीव आ गया कि वो गांधी जी को के बताए रास्ते पे चलने के लिए ब्लाइंडली उनको फॉलो करने लगे। रॉलट एक्ट was a very humiliating act that time, and Gandhi ji opposed it. The British passed Rowlatt Act 1919. This law restricted the people's freedom by empowering the government to arrest without warrant and prison without trial. ये जो रॉलट एक्ट आया, इसके थ्रू 1919 में जो भी ये गवर्नमेंट को या पुलिस को ये अरेस्ट का इतना राइट मिल गया कि वो किसी भी के सस्पेक्ट के ऊपर को अरेस्ट कर सकते थे और उसको विदा ट्रायल के पनिशमेंट दे सकते थे। इट वाज ब्रांडेड द ब्लैक एक्ट। लोगों ने इसका काला कानून कह के इसका विरोध किया। गांधी जी लॉन्च द एंटी रॉलट सत्याग्रह। ही कॉल्ड अपॉन द इंडियंस to observe 6 अप्रैल 1919 as a day of हड़ताल। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को एक कंट्री वाइड हड़ताल शुरू किया, भूख हड़ताल शुरू की। सत्याग्रह सभास वर सेटअप टू ऑर्गेनाइज मीटिंग्स एंड नॉन वायलेंट स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द एक्ट। गांधी जी's कॉल रिसीव्ड वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्स। और गांधी जी के इस तरह से जो सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया, इस एक्ट के खिलाफ लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। अब जब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि हमें 13 अप्रैल को वहाँ पर जाना है, 10 अप्रैल को ही 10 अप्रैल को ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम लोग एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं जलियांवाला बाग में। वहाँ एक बहुत बड़े सेमिनार, मतलब एक मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन इसके पहले ही गांधी जी को और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। एंड देखते हैं हम लोग जलियांवाला बाग मास्कर की घटना हुई वहाँ पर। इन अमृतसर द अरेस्ट ऑफ 2 प्रोमिनेंट लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल लेड टू स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। और यहाँ पर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जो एक लीडर्स थे कांग्रेस के, इन्होंने वहाँ पर जलियांवाला बाग में किसी बड़े लीडर के ना होने की वजह से यहाँ पर इन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और फिर इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। Unaware of the ban on public meeting, the people of Amritsar held a meeting at Jallianwala Bagh on 13 अप्रैल 1919। इसके वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया था और वह जलियांवाला बाग में लोगों ने पीसफुल तरीके से वहाँ पर एक मीटिंग की और कुछ वहाँ पर बैसाखी फेस्टिवल के लिए लोग भी वहाँ पर आए हुए थे। तो इस तरह से कुछ भीड़ वहाँ जलियांवाला बाग में इकट्ठा थी। जनरल डायर, द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, ब्लॉक्ड द पार्क नैरो एग्जिट एंड ऑर्डर्ड इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग। और जनरल डायर जो वहाँ का पुलिस कमांडर था, मिलिट्री कमांडर, उसने जो एग्जिट का रास्ता था बहुत नैरो, उसको भी बंद कर दिया चारों तरफ से और वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। दिस स्टन्ड द नेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर renounced the knighthood in protest। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उनको नाइटहुड की जो एक उपाधि मिली थी उसको वापस कर दिया। द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इन पंजाब। प्रोटेस्ट्स वर पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड एंड मेनी वर सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, डिपोर्टेशन और डेथ। बहुत इस के खिलाफ जो गुस्सा हुआ पूरे पंजाब में, उसको भी पुलिस ने दबाने के लिए बहुत सारे लोगों को जेल में डाला, कुछ लोगों को देश के बाहर कर दिया और कुछ को डेथ
की पनिशमेंट भी दी गई। नाउ स्टूडेंट्स विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एंटी ब्रिटिश मूवमेंट्स। हम लोग इसमें आगे बहुत सारे जो मूवमेंट्स चलाए गांधी जी ने और अदर लीडर्स ने, उन सब को देखेंगे। टिल देन आप इस पार्ट को रिवाइज करिए एंड विल डिस्कस द लेटर पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।